Good morning, students. Yesterday we introduced the new chapter of Geography, Chapter 7, Lifelines to National Economy. In topic 1, we did the introduction. Today the topic 2 is roadways. Yesterday we discussed that in the chapter we read that the land transport classified into three categories: roadways, railways and pipelines. In the first segment we will discuss about the roadways. India has one of the largest road network in the world. अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में इंडिया कंसिडर होता है. दे आर लेंथ ऑफ रोड इज वेरी बिग, about 2000. It is aggregating about 2.3 million kilometer, the length of road at present. कुछ बुक्स के अंदर डाटा डिफर हो सकता है, न्यू एडिशन बुक्स के अंदर. Why in India roadways have preceded railways? इंडिया में रोडवेज को रेलवेज से ज़्यादा एक बेटर क्यों माना जाता है? और हाउ कैन यू से दैट रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज? आज भी रोडवेज को वो एक कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, एक प्रिविलेज है ओवर रेलवेज. और वी कैन से दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोडवेज. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज. द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन. यदि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपेयर करें रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर और रोडवेज के कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो रोडवेज की कॉस्ट इस काफ़ी कम आती है. इट इज़ मच लोअर देन द रेलवे लाइन. टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे लाइन इज वेरी कॉस्टली. दैट्स वाई वी प्रिफर द रोडवेज देन द रेलवेज. नाउ second advantage is road can traverse comparatively more dissected and undelted topography. It is undulating topography. The land which is not plain, which is not leveled, in such areas road can be constructed, but railways construction is very difficult. Even roads can negotiate in higher gradients of slopes, like in the mountain or hilly areas. In such areas roadways can be constructed, but it is not easy to construct the railways, mainly in the mountains of Himalayas. Economical, it is very economical for the few person and smaller amount of goods and over short distances. यदि हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है कुछ ही लोगों का, या हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना है फॉर ए ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना है. सो यदि हमें फ्यू पर्सन और स्मॉल अमाउंट गुड्स को शॉर्ट डिस्टेंस हमें मूवमेंट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, देन रोडवेज आर चीपर, रोडवेज आर इकोनॉमिकल देन द रेलवेज. इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. रोडवेज हमारे घर तक आते हैं ना, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट हमारे घर तक नहीं पहुंचते हैं, बट रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. इससे लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है. It is used as feeder. It is used as link transport, linker or feeder to other means of transport. First of all, we have to go to the railway station. Then first of all, we have to use the roadways. हमें एयरपोर्ट जाना है, सी पोर्ट जाना है, या हमें रेलवे स्टेशन जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो देयर थ्रू द रोडवेज, लैंड रूट्स. That's why roadways are prefer than the railway. They have preceding as over railways. What is the road density? The length of road
पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, 100 स्क्वायर मीटर एरिया में जो लेंथ रोड की लेंथ होती है, इट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड. आई एम अगेन रिपीटिंग, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया is known as density of roads. Density of road vary from state to state and one area to another area. In 1996 to 1997, in Jammu Kashmir, road density was 10 kilometer per 100 square kilometer of area. In Kerala, it is about 375 kilometer. It was maximum in Kerala. And average national road density was in 1996 to 1997 about 75 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. 2018-19 के अंदर इन जम्मू कश्मीर अबाउट 164 किलोमीटर, इन केरला 528.8 किलोमीटर एंड इन नेशनल अबाउट 142.7 किलोमीटर. सो रोड डेंसिटी वेरी from one state to another state, one area to another area. Now there are few problems which are faced by the road transportation in India. There are so many advantages are there, and there are some problems also which are facing by the roadways in our country. Road network is inadequate. यदि हम कंपेयर करें ट्रैफिक ऑफ वॉल्यूम और पैसेंजर, जितना इंडिया में पैसेंजर्स हैं, जितना ट्रैफिक है हमारी कंट्री के अंदर, उसके कंपैरिजन में हम देखें, सो रोड नेटवर्क इज नॉट सफिशिएंट, रोड नेटवर्क इज इनएडेक्वेट इन अवर कंट्री. एंड अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड इन अवर कंट्री. स्टिल जितने इतनी डेवलपमेंट कंट्री में हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज भी मोर देन हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्स. एंड अनमेटल रोड्स, द कच्चा रोड्स, गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में यूज करना इतना आसान नहीं होता है, वो यूज में नहीं आ पाते हैं हमारे अनमेटल रोड्स. इवन नेशनल हाईवेज आर ऑल्सो इनएडेक्वेट. अगर हम टोटल ट्रैफिक को कंपेयर करें तो जितने नेशनल हाईवे इंडिया में होने चाहिए, नेशनल हाईवेज भी हमारे यहाँ प्रॉपर काउंट नंबर में नहीं है. दे आर ऑल्सो लेस इन नंबर. द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड सिटीज. शहरों में रोड्स देखें तो बहुत ही कंजेस्टेड रोड होते हैं, छोटे रोड्स हैं. इट इज नॉट इजी, एक साथ 2 व्हीकल्स को पास होना वेरी डिफिकल्ट है ऐसे रोड्स के अंदर. एंड शॉपकीपर्स और ऊपर से उन्हें कंजेस्टेड बना देते हैं. मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड कलवर्ट, जितने भी हमारे पुराने टाइम के ब्रिजेज हैं, जितने कलवर्ट्स हैं, या तो पुराने इंडिया में रोडवेज के अंदर या ओल्ड है और नैरो या छोटे हैं, उनकी देयर width is very less. So most of the bridges and culverts are old and narrow. There are some problems which are facing by the roadways or road transportation in India. In next video we will discuss about the types of roads. Okay students, that's all for today beta.